So in our previous topic, we studied the magnification as the ratio of size of image to the size of object. Now, today we will discuss the types of magnification. Magnification is basically of two types. We have a linear magnification, and the second one is aerial magnification. Linear magnification, aerial magnification. There are two kinds of magnifications used for spherical mirrors. Number one is linear magnification. Number second is aerial magnification. This linear magnification is of two types. Transverse magnification and the second one is longitudinal magnification. Linear magnification is of two types: transverse magnification and longitudinal magnification. For one-dimensional case, we take this linear magnification and it's of two types: transverse magnification and longitudinal magnification. This transverse magnification we studied in the previous lecture. It was defined as the height of image, ratio of height of image to the height of object. Because in case of transverse magnification, we were placing object perpendicular to the principal axis. In that case, we measured the height of the object and the height of the image, and then we calculated the transverse magnification. Now today, we will discuss these two. We will discuss longitudinal magnification and aerial magnification. We will discuss these two. Now let us today discuss the longitudinal magnification and the aerial magnification, because we have already discussed the transverse magnification. Now let us discuss longitudinal magnification. Longitudinal magnification. Today we will discuss this longitudinal magnification first, and then we will discuss the aerial magnification. Suppose we have a mirror here. Suppose this is the pole of the mirror and this is the principal axis. In our previous topic, while discussing transverse magnification, we were placing object perpendicular to the principal axis. Now let us today place our object parallel to the principal axis. Suppose this is our object. This is object. We have placed this object parallel to the principal axis. Suppose O, this is the size of object. Or here we can say length of object. Now here you see the two ends of the object, they are at different distances from the pole of the mirror. Suppose this end is at a distance of u1 from the pole of the mirror, and this end of the object is at a distance of u2 from the pole of the mirror. ये वाला end जो object का है, ये मैंने रखा at a distance of u2 from the pole of the mirror, और ये वाला end जो object है, it is at a distance of u1 from the pole of the mirror. तो अगर हम यहाँ पर length of object निकालेंगे, then this length of object, this will be u2 minus u1. Now, suppose यहाँ पर जो ये है, this is the image of the object. This is object and this is the image of the object. I will call this I. Now, image का जो ये वाला side है, suppose it is at a distance of v2 from the pole of the mirror,
एंड ये वाला साइड जो है सपोज इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ v1 फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. अब लेंथ ऑफ इमेज जो होगी दैट विल बी इक्वल टू v1 माइनस v2. v1 माइनस v2. ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये लेंथ ऑफ इमेज है. When we place the object parallel to the principal axis, in that case we discuss the longitudinal magnification. This longitudinal magnification, it is defined as ratio of length of object, length of image to the length of object. जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है इसको हम डिफाइन करेंगे लेंथ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. वहां हमने डिफाइन किया था इसको रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो यहां पर जो हमारा m है, दिस m विल बी इक्वल टू I by O. यहां I लिया मैंने इमेज का लेंथ और यहां O लिया ऑब्जेक्ट का लेंथ. अगर हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट भी लिखेंगे तो ये ऐसे बनेगा v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय u2 माइनस u2 माइनस u1. u2 माइनस u1 तो वहां आया v1 माइनस v2. नाउ m हो गया बराबर I by O. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस हम कॉमन लेंगे, ऊपर बनेगा v2 माइनस v1, नीचे आएगा u2 माइनस u1. दिस इज वन एक्सप्रेशन फॉर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन. लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो है दिस इज रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. लेंथ ऑफ इमेज I है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट O है, देन m जो हमारा है दिस इज I by O. तो लेंथ ऑफ इमेज जो है दैट्स v1 माइनस v2, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दैट इज v2 माइनस v1. तो मैंने लिखा m इज इक्वल टू I by O माइनस टाइम्स v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u2 माइनस u1. इस इक्वेशन को मैं नाम रखूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ अगर ऑब्जेक्ट, इफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, अगर ऑब्जेक्ट हमारा बहुत छोटा होगा तो उस वक्त हम इसको ऐसे लिखेंगे m इज इक्वल टू I by O एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स dv डिवाइडेड बाय du. If the object is very small, in that case we will write equation first as instead of v2 minus v1 we write dv, and instead of u2 minus u1 we write du. This is the second expression for the longitudinal magnification. Let us now move ahead. We can write this longitudinal magnification in terms of v and u also. Now, as per mirror formula, 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. मिरर फार्मूला आपने सुनी होगी, जो मैंने पढ़ाया है, 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. अब मैं यहां पर dv by du निकालूंगा, यानी मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू u. मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू u, तो हमें क्या निकलेगा du by d by du of 1 by f, differentiation of f 1 by f with respect to u is equal to d by du of 1 by u plus d by du of 1 by v. I have differentiated this equation with respect to u. Now, चूंकि मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कांस्टेंट होती है, तो हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो. तो यहां पर आएगा आपको जीरो इज इक्वल टू, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ी होगी d by dx ऑफ 1 by x, वो पढ़ी होगी आपने, दैट्स इक्वल टू माइनस 1 by x स्क्वायर. यहां पर जो 1 by u है इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी दैट विल बी माइनस 1 by u स्क्वायर प्लस
की डिफरेंशिएशन करनी है विद रेस्पेक्ट टू u, ये होगी आपकी -1/v² इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन जो v की है dv डिवाइडेड बाय du। यहां पर आएगा इंटरनल डिफरेंशिएशन u का du डिवाइडेड बाय du कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर रहेगा खाली -1/u²। यहां पर 1/v की डिफरेंशिएशन जो है दैट इज -1/uv² dv बाय du। 1/u² को हम यहां लेंगे, ये बनेगा 1/u² इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1/v² dv बाय du। v² को यहां लेंगे, ये बनेगा v² डिवाइडेड बाय u² इज इक्वल टू माइनस du बाय dv। हम ऐसे लिखेंगे, माइनस जो है इसको यहां लेंगे, ये बनेगा माइनस टाइम्स dv बाय du इज इक्वल टू v बाय u का होल स्क्वायर। क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, v बाय u का होल स्क्वायर। u माइनस को यहां लेंगे तो हमें बनेगा dv बाय du इज इक्वल टू माइनस टाइम्स v बाय u का होल स्क्वायर। तो मैंने निकाला इस d बाय du का वैल्यू, तो d बाय du का वैल्यू मुझे निकला माइनस टाइम्स v बाय u का होल स्क्वायर। कैसे निकला? मैंने मिरर फार्मूला को डिफरेंशिएट किया। जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन ऑफ f जो है दैट्स 0 बिकॉज़ फोकल लेंथ इज कांस्टेंट। 1/u की डिफरेंशिएशन है -1/u² du बाय du कैंसिल हो गया। 1/v का डिफरेंशिएशन है -1/v² dv बाय du। तो यहां पर मैंने ये सिंपल मैथमेटिक्स लगा के मुझे dv बाय du निकला -v बाय u होल स्क्वायर। अब इस d बाय du का वैल्यू जो है, लेट मी पुट दिस वैल्यू ऑफ d बाय du इन इक्वेशन नंबर 2। व्हाट वी गेट, हमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के लिए एक और एक्सप्रेशन निकला, m इज इक्वल टू I बाय o, दिस इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये बन गया आपको v बाय u का होल स्क्वायर। हमें बना m इज इक्वल टू I बाय o, तो ये बना हमें v बाय u का होल स्क्वायर। नाउ m जो आपको है, ये आपको पता है, दिस इज लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इस फार्मूला के जरिए हम लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज भी निकाल सकते हैं। नाउ m जो होता है मैग्निफिकेशन, दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज। सपोज आई विल डिनोट दैट बाय li डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, आई विल डिनोट दैट बाय lo। तो उस सूरत में ये इक्वेशन क्या बनेगी? ये बनेगी हमें, क्या बनेगी ये बनेगी हमें li divided by LO is equal to V by U whole square. What is LI? Length of image. What is LO? Length of object. तो हम ऐसे लिखेंगे, length of image is equal to V by U का whole square into length of object. ये फार्मूला जो है, this formula is used for calculating the length of object. If the length of object distance and the image distance are given, we can calculate length of object by this formula. इस इक्वेशन को मैं नाम रखूंगा इक्वेशन नंबर 3। इससे हमने क्या निकाला? लेंथ ऑफ इमेज। तो यहां तक ये और ये जो है, ये तीन फार्मूला जो है, these three expressions, they are used for calculating the magnification. So from this formula we can calculate the length of image in this way. Length of image li is equal to v by u का whole square into lo, where lo is equal to length of object, li is equal to length of image. अब हम v by u का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हमें पता है 1 by f जो है, this is equal to 1 by v plus 1 by u। डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू by v, ये बनेगा v by f is equal to v by v plus v by u। ये v by v and v cancels, तो ये बनेगा v by f is equal to 1 plus v by u। और हम ऐसे लिखेंगे v by u is equal to v by f minus 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा v by u is equal to तो यहां पर क्या बनेगा? ये v minus f divided by f, v minus f divided by f। हम ये एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं इसमें,
तो यहां पर मैंने क्या, वी हैव डिवाइडेड थ्रू आउट बाय v, दिस इज v बाय f इज इक्वल टू v बाय v प्लस v बाय u। तो यहां पर हम v बाय u का वैल्यू निकालेंगे। v बाय u किसके बराबर है, ये निकला हमें v माइनस f बाय f, v माइनस f बाय f। हम इस वैल्यू को भी यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और इन टर्म्स ऑफ दैट भी हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम ये वैल्यू यहां पर भी देंगे तो हम वी कैन कैलकुलेट दिस v by u, we can put the value of v by u here and we can calculate Li in terms of LO. तो this completes your this longitudinal magnification। तो यहां पर आपको ये फार्मूला याद रखनी है, लेंथ ऑफ इमेज जो है that is equal to v by u का होल स्क्वायर into LO। This was about the longitudinal magnification। Now v by u का वैल्यू जो है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड में। तो थर्ड में सब्स्टिट्यूट करने से बेटा हमें क्या आया, हमें Li यानी लेंथ ऑफ इमेज दिस इज इक्वल टू v माइनस f डिवाइडेड बाय f होल स्क्वायर इनटू LO। तो यहां पर मैंने v by u का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट किया, ये दूसरी फार्मूला निकली हमें लेंथ ऑफ इमेज की। ये हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास फोकल लेंथ दिया गया होगा, इमेज डिस्टेंस दी होगी और ऑब्जेक्ट का साइज दिया गया होगा, उस वक्त हम इमेज का साइज यानी लेंथ ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन के लास्ट टाइप पे जाएंगे जिसको हम कहते हैं एरियल मैग्निफिकेशन। ये जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो है या लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो है, इसमें हमारे पास खाली वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था, इसीलिए हम इसको लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन में हम क्या काम करेंगे, हमारे पास एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा, जैसे हमारे पास ये बोर्ड है, ये टू डायमेंशनल है, इसकी ये लेंथ है, ये इसका ब्रेड्थ है। सपोज ये मेरे पास एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर। सपोज यहां पर मेरे पास एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है यहां पर। सपोज इस टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को मैं प्लेस करूंगा परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। सपोज इसकी लेंथ जो है वो a है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो b है। अब जो हमारे पास टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है उसकी लेंथ भी होती है, उसका ब्रेड्थ भी होता है, तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट चीज बनती है वो बनता है एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज a इनटू b। अगर हम इस ऑब्जेक्ट का एरिया जो है वो हम AO से डिनोट करेंगे, तो AO हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट मींस A इनटू b। अब जो इसकी जो इमेज जो मिरर बनाएगा वो इमेज भी टू डायमेंशनल होगी। सपोज ये दिस इज द इमेज, वो हमारा ऑब्जेक्ट था, दिस वाज द ऑब्जेक्ट एंड सपोज दिस इज द इमेज। जब ये मिरर इस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करेगा उस वक्त क्या होगा, जो इसकी लेंथ है ये भी मैग्नीफाई हो जाएगी, जो इसकी ब्रेड्थ है ये भी मैग्नीफाई हो जाएगी। सपोज जो इमेज है इसकी जो लेंथ है वो है m टाइम्स a। सपोज इसकी जो ब्रेड्थ है दैट इज m टाइम्स b। ऑरिजिनली ऑब्जेक्ट की लेंथ a थी, ऑब्जेक्ट की ब्रेड्थ b थी, तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट जो था वो था a इंटू b। अब जब इमेज बन गई, इमेज में लेंथ भी ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाई हो जाएगी, ब्रेड्थ भी ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाई हो जाएगी, तो ऑब्जेक्ट की इमेज की जो लेंथ है वो मुझे मिल गई m टाइम्स a और इमेज जो है ब्रेड्थ जो है वो बन गई m टाइम्स b। सपोज ai जो है ये डिनोट करता है एरिया ऑफ इमेज, तो एरिया ऑफ इमेज बनेगा ma इंटू mb। अब जो ये एरिया मैग्निफिकेशन है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं रेशो ऑफ एरिया ऑफ इमेज टू द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि मिरर लेंथ को भी मैग्नीफाई करता है, इस टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की लेंथ को भी मैग्नीफाई करता है और ब्रेड्थ को भी मैग्नीफाई करता है, तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट चीज बनेगा वो बनेगा हमें एरिया। तो हम डिफाइन करते हैं एरियल मैग्निफिकेशन एज रेशो ऑफ एरिया ऑफ इमेज टू द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। रेशो ऑफ
एरिया ऑफ इमेज टू द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज हम इसको डिनोट करेंगे ms से, तो ma से डिनोट किया, ms से डिनोट करेंगे। यहां पर चूंकि a से मैंने लेंथ लिया, तो ms हमारा होगा रेशियो ऑफ एरिया एनक्लोज्ड बाय द इमेज टू द एरिया एनक्लोज्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इमेज टू द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें यहां पर ऐसे निकलेगा, जो AI है तो वो है MA इंटू MB डिवाइडेड बाय जो AO है एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, वो है A इंटू B। तो मेरा यहां पर ऐसे निकलेगा AI डिवाइडेड बाय AO, दिस इज इक्वल टू M स्क्वायर AB डिवाइडेड बाय AB। AB कैंसिल हो गया, तो मुझे निकला AI डिवाइडेड बाय AO इज इक्वल टू M स्क्वायर। This is the expression for my aerial magnification। तो आप लोगों ने याद रखा बच्चों, एरियल मैग्निफिकेशन जो है वो है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इमेज टू द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ इमेज मैंने निकाली MA इंटू MB, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने निकाला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, A इंटू B, AB कैंसिल हो गया, मुझे AI बाय AO निकला M स्क्वायर, सो वो बराबर है MS। को जब भी आप ये इस टाइप के क्वेश्चन पे जब भी आपको न्यूमेरिकल आएगी तो आपको M निकालना है, बाद में M को स्क्वायर करना है, तो आपको एरियल मैग्निफिकेशन निकलेगी। This was about the types of magnification, and now we will go for some numericals for spherical mirrors. Pause. Now let us discuss some numerical problems on spherical mirrors. These numerical problems have been asked in the previous year's NEET and JEE mains examinations. They are very beautiful numericals, and let us do some of them here. Numerical number first is, we have a convex mirror of focal length f forms an image which is 1 by n times the object. The distance of object from the mirror is n minus 1 into f, n plus 1 divided by n into f, n minus 1 divided by n into f, n plus 1 f. Now क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ f है। अब इसने इमेज बनाई, जिस इमेज का जो साइज है दैट इज 1 by n times the size of object। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सिंपली डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। हाँ बेटा, हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है, दिस इज आवर कन्वेक्स मिरर। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी इस न्यूमेरिकल में, चलो आपके लिए मैं डायग्राम बनाऊंगा। इस कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है दैट इज f, ये वहां से दी गई है, इसकी फोकल लेंथ f है। अब इस कन्वेक्स मिरर का में जो ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का जो साइज है दैट इज इक्वल टू 1 by n टाइम्स द साइज ऑफ इमेज। सपोज ये हमारी इमेज है, सपोज दिस इज आवर इमेज, ये हमारी इमेज है यहां पर। नाउ जो ये इमेज है, इस इमेज का जो साइज है दैट इज 1 by n टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे बेटा निकालना है सिंपली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नाउ जब भी हम ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, हमें साइन कन्वेंशन का जरूरी ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि मिरर जो है दैट इज अ कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है, ये मैंने आपको बताया है, दैट्स ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि मिरर जो है, मिरर हमारा जो मिरर है दैट इज कन्वेक्स, तो हमारा जो फोकल लेंथ होगा दैट इज पॉजिटिव, दैट विल बी प्लस f। अब हमें और क्या दिया गया है, हमें बोला गया है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1 by n टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, साइज ऑफ इमेज जो है दैट्स 1 by n टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम ऐसे लिखेंगे साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 by n। तो हमें पता है साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन हमारी दी हुई होगी दैट इज m इज इक्वल टू 1 by n। तो जो क्वेश्चन में बताया गया है इमेज इज 1 by n टाइम्स दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब है हमारा मैग्निफिकेशन दिया गया है, तो मैग्निफिकेशन m जो है दैट इज 1 by n।
और मैग्निफिकेशन यहां पर पॉजिटिव होगा क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। अब हमें निकालना है u, यानी हमें निकालना है जो ऑब्जेक्ट की क्या डिस्टेंस है फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। जब मैंने मैग्निफिकेशन पढ़ाया था, लीनियर मैग्निफिकेशन, मैंने वहां पर आपको रिलेशन बताई थी, रिलेशन बिटवीन m, f एंड u। मैंने बताया था m जो होता है m दैट इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय f माइनस u। मैंने वहां बोला था आपको मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ f एंड u, तो मुझे ये फार्मूला थी m इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय f माइनस u। अब हम यहां पर क्या काम करेंगे, हम सिंपल क्वेश्चन है, आधा 30 सेकंड में ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। m का वैल्यू देंगे, ये 1/n है, इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय f माइनस u। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा nf इज इक्वल टू f माइनस u। अब इस f को हम यहां लाएंगे, ये बनेगा nf माइनस f इज इक्वल टू माइनस टाइम्स u। यहां पर हम इसका f कॉमन लेंगे, ये बनेगा n माइनस 1 इंटू f इज इक्वल टू माइनस u। माइनस जो है वो यहां लेंगे, तो ये बनेगा u इज इक्वल टू माइनस टाइम्स n माइनस 1 इंटू f। यहां पर जो ये माइनस है ये खाली साइन कन्वेंशन है। अगर हम ऑब्जेक्टिव में जो आपका आंसर होगा दैट विल बी सिंपली n minus 1 into f, because here this negative sign it only denotes that this is the object distance, and ये माइनस साइन जो होता है ये यहां पर साइन कन्वेंशन की वजह से आता है। तो हम लिखेंगे सिंपली जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया आपका सिंपली यहां पर n minus 1 into f। तो सीधे आपने किया, सिंपल फार्मूला लगाई, m इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय f माइनस u। तो हमें 1/n जो है मैग्निफिकेशन दिया गया होगा, दिया है तो हमने 1/n लिखा, दिस इज f डिवाइडेड बाय f माइनस u। सिंपल मैथमेटिक्स लगाकर हमने ये कैलकुलेट किया। दिस फिनिशेस द न्यूमेरिकल फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है, a 2 centimeter tall object is placed 15 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeters. What is the size and nature of image? हमारे पास एक concave mirror है, इस concave mirror के पोल से 15 सेंटीमीटर दूर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा जो कितना टाल है, जिसकी हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, और जो concave mirror है उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। What is the size and nature of the image? साइज ऑफ इमेज निकालना हमें, यानी h2 हम निकालना है हमें, और हमें बताना है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज जो है वो साइन पे डिपेंड करेगा। अगर हमारा साइन नेगेटिव आया तो हमारी इमेज जो होगी वो रियल होगी, अगर हमारा साइन पॉजिटिव आया लास्ट पे तो हमारी इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी। तो मैन चीज जो इस न्यूमेरिकल में हमें निकालना है वो निकालना हमने साइज ऑफ इमेज। ये बेटा मेरा कनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, इसके पोल से 15 सेंटीमीटर दूर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा। यहां पर मेरा ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो वहीं से दी गई होगी, दैट इज 2 सेंटीमीटर, यानी इसका जो साइज है वो 2 सेंटीमीटर है, और जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u जो है दैट इज अभी मुझे दिया गया है 15 सेंटीमीटर। इसकी जो फोकल लेंथ है, इसकी फोकल लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब मुझे साइज ऑफ इमेज निकालना है और नेचर ऑफ इमेज निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ सपोज h1 से मैं डिनोट करूंगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैं लिखूंगा h1। व्हाट इज h1? h1 जो मेरा है दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चूंकि क्वेश्चन कह रहा है 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मींस हाइट दी गई होगी, साइज दी गई है, दिस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स एज पर साइन कन्वेंशन। आपको डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो u है, वो हमेशा नेगेटिव होती है, दिस इज u इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर। अब मेरा जो मिरर है, मेरा मिरर जो है दैट इज अ कनकेव मिरर, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। f जो मेरी है
दैट इज -10 सेंटीमीटर। अब पहले मुझे H2 निकालना है। अगेन यहां पर मेरा F और U दिया गया है। हाइट ऑफ इमेज कैसे मैं निकालूंगा? मैं फिर मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट यूज करूंगा। मुझे पता है M जो होता है, M मैग्निफिकेशन, वो होता है H2 डिवाइडेड बाय H1, और इन टर्म्स ऑफ F एंड U वो होता है बराबर F डिवाइडेड बाय F माइनस U। दिस एम्प्लाइज, मैं ऐसे लिखूंगा H2 बाय H1 इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय F माइनस U। मुझे H2 निकालना है, H1 तो मेरा दिया गया है। दिस इज H2 डिवाइडेड बाय H1, मेरा क्या है 2, इज इक्वल टू व्हाट इज माय F? मेरा F जो है वो -10 डिवाइडेड बाय -10 माइनस माइनस वो बनेगा +15। तो यहां पर मेरा H2 जो है, H2 मेरा बन गया, H2 बाय 2 जो है वो मेरा बन गया -10 डिवाइडेड बाय 5। चूंकि 10 में से हमने 15 घटाया तो 5 आ गया। 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो H बाय 2 निकला -2। तो H मेरा जो निकला है वो मुझे निकला -4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो साइज ऑफ इमेज है, साइज ऑफ इमेज जो है वो 4 सेंटीमीटर है। और जो ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन मींस दैट इमेज इज रियल। चूंकि जब रियल इमेज होती है वो डाउनवर्ड्स होती है, और डाउनवर्ड हाइट्स जो होते हैं वो नेगेटिव होगी। इसका मतलब है जो साइज ऑफ इमेज है वो 4 सेंटीमीटर निकला, जो नेचर ऑफ इमेज है वो है रियल। सिंपली कैसे मैंने किया, m जो है वो H2 बाय H1 है, वो है बराबर F डिवाइडेड बाय F माइनस U। तो H2 निकालना है, H1 का वैल्यू दिया, F का वैल्यू दिया, उसके बाद फिर मैंने F का वैल्यू दिया, फिर U का वैल्यू दिया, H2 निकाला मैंने यहां पर। तो H2 जो है वो साइज ऑफ इमेज है। नेगेटिव साइन जो है वो हमें दिखाता है नेचर ऑफ इमेज, क्योंकि नेगेटिव साइन तब होता है जब इमेज रियल होती है। तो हियर द नेचर ऑफ इमेज इज दैट इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है a square wire of side 1 centimeters is placed perpendicular to the principal axis of a concave mirror of focal length 15 centimeters at a distance of 20 centimeters. The area enclosed by the image of the wire is 4 centimeter square, 6 centimeter square, 2 centimeter square, 8 centimeter square, 9 centimeter square. देखो बेटा, पहले जो हमारा स्क्वायर है ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर हम यूज करेंगे एरियल मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट। जो m स्क्वायर है वो होता है एरिया ऑफ इमेज डिवाइड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका जो साइड है 1 सेंटीमीटर है। क्योंकि स्क्वायर का हर एक साइड जो होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैंने परपेंडिकुलर रखा प्रिंसिपल एक्सिस को। किसकी प्रिंसिपल एक्सिस को? कनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस को। तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। जो ये ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर है, इसको मैंने कितना दूर रखा है? इसको मैंने रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर। मुझे क्या निकालना है? एरिया एनक्लोज्ड बाय द इमेज। एरिया एनक्लोज्ड बाय द इमेज। यहां पर मेरा एक कनकेव मिरर है। दिस इज अ कनकेव मिरर। यहां पर मैंने प्लेस किया एक स्क्वायर को। इस स्क्वायर का जो हर एक साइड है, ये स्क्वायर यहां पर मैं एक स्क्वायर रखूंगा। ये स्क्वायर मैंने रखा। इसका हर एक साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर है। ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर। इसको मैंने कितना दूर रखा मिरर से? इसको मैंने मिरर से रखा 20 सेंटीमीटर पे। यानी u मेरा जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज 20 सेंटीमीटर, मगर इन केस हियर इट विल बी -20 सेंटीमीटर। इस मिरर की जो फोकल लेंथ है दैट इज
15 सेंटीमीटर्स। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एरिया एनक्लोज्ड बाय द वायर। मुझे एरिया ऑफ इमेज निकालनी है। क्योंकि स्क्वायर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मुझे फार्मूला पता है, मुझे पता है जो एरियल मैग्निफिकेशन है उसमें मुझे ऐसे है, m स्क्वायर इज इक्वल टू ai डिवाइडेड बाय ao। ai जो है दिस इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय द इमेज, ao जो है दिस इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नाउ ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? वो स्क्वायर है, उसका जो लेंथ है, उसकी जो ब्रेड्थ है वो 1 सेंटीमीटर है, और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर। तो मेरा जो AO है दैट इज साइड स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर, तो वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ जो M है, M मुझे पता है वो होता है -v/u। मिरर्स में जो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला है वो m होते हैं बराबर माइनस टाइम्स इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां पर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी गई होगी दैट इज -20 सेंटीमीटर्स, u जो है वो है -20 सेंटीमीटर्स। मुझे क्या करना है? मुझे v निकालना है। f भी मेरा दिया गया है, f है -15 सेंटीमीटर्स। चूंकि ये जो मेरा है ये वर्चुअल इमेज, ये जो मेरा है ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो होता है नेगेटिव। अब हम v कैसे निकालेंगे? मिरर फार्मूला के जरिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ऐसे लिखेंगे 1/v ये वाला इज इक्वल टू 1/f, यहां से क्या लाएंगे u माइनस 1/u। ये है 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो ये होगा ऐसे 1/v इज इक्वल टू u माइनस f क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय uf। अब v निकालो, v की जो फार्मूला है वो है uf डिवाइडेड बाय u माइनस f। v की जो फार्मूला है वो है uf डिवाइडेड बाय u माइनस f। लगाओ भाई यहां वैल्यू, ये v जो है v विल बी इक्वल टू u कितना है बेटा? u है मेरा -20 इंटू f कितना है बेटा? f है मेरा -15 डिवाइडेड बाय u है -20, और यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दिस इज +50। तो v निकलेगा मेरा, v हो गया मेरा 15 zeros are 0, 15 twos are 30, ये आ गया 300 माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय -5। तो v जो मेरा है v मेरा निकलेगा -60 सेंटीमीटर्स। v मेरा है वो -60 सेंटीमीटर्स। नेगेटिव साइड मुझे बता दें, अगर मुझे नेचर बोलना होगा नेगेटिव साइड शोज दैट इमेज इज रियल। तो v निकला मेरा -60। अब v का जो वैल्यू है, ये v का जो वैल्यू है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर m में, क्योंकि जब हमें m निकलेगा तब हमें ai निकलेगा, क्योंकि ao हमारा पता है। Therefore m is equal to, तो आपका m जो है m क्या आएगा आपका? m आएगा आपका माइनस टाइम्स v, माइनस माइनस बनेगा प्लस, ये हो गया -60 डिवाइडेड बाय u क्या बेटा? u है -20। तो हमारा m जो मेरा बेटा है ये आया हमें माइनस माइनस कैंसल्स, ये 0 0 कैंसल्स, ये मेरा आया बेटा -3। मैग्निफिकेशन जो है वो -3 आई। अब इस m का वैल्यू जो है, इस m का वैल्यू में इस इक्वेशन, इसको मैं फर्स्ट रखूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करूंगा। मुझे क्या निकला? m निकला -3, दिस इज -3 स्क्वायर इज इक्वल टू ai यानी एरिया एनक्लोज्ड बाय इमेज डिवाइडेड बाय ao है 1। तो इसका मतलब है मुझे ai निकला 3 3 हो गया 9, दिस इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया एनक्लोज्ड बाय द इमेज इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे हम आपने किया? चूंकि स्क्वायर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो हमने एरियल मैग्निफिकेशन का कांसेप्ट लगाया। हमने बोला m स्क्वायर इज इक्वल टू ai डिवाइडेड बाय ao जो है दिस इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय द ऑब्जेक्ट। दिस इज, चूंकि ऑब्जेक्ट जो है वो स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ao मैंने इस फार्मूला का ao मैंने निकाला। अब मुझे m निकालना है। m मैग्निफिकेशन है, m होता है बराबर -v/u। तो u मेरा दिया गया है -20, v तो मुझे निकालना है, फोकल लेंथ तो -15 सेंटीमीटर। मैंने मिरर फार्मूला यूज की 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u।
तो मुझे 1/v निकली, 1/f माइनस 1/u। तो यहां पर v का फार्मूला निकला, v इज इक्वल टू uf डिवाइडेड बाय u माइनस f। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके मुझे v निकला। अब जब v निकला, v का वैल्यू जो है वो मैंने m वाले एक्सप्रेशन में, इसको मैं नाम रखूंगा इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट किया, तो यहां पर मुझे m का वैल्यू निकला -3 का m का जो वैल्यू है वो फर्स्ट में निकालो और ao का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, हमें ai निकलेगा। तो एरिया एनक्लोज्ड बाय द इमेज इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हमें बिल्कुल ये 20 सेकंड में हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं नीट के एग्जाम में या जेईई के एग्जाम में। ये देखो क्या कह रहा है, a point object is placed on the axis of concave mirror. Axis of concave mirror means on the principal axis at a distance of 60 centimeter from the focal point of mirror. Its image is formed at the point of object. Then the focal length of the mirror is 15 centimeter, 30 centimeter, 60 centimeter, 120 centimeter. Very easy objective। इतना बड़ा कुछ दिया गया है इसमें, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव को हम बिल्कुल 20 सेकंड से भी कम वक्त में सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा दिया क्या है इसमें, फिर से मैं पढ़ूंगा। A point object. Point object means small point, जिसके नेग्लिजिबल डायमेंशंस होंगे। पॉइंट के नेग्लिजिबल डायमेंशंस होते हैं। A point object is placed on the axis of concave mirror at a distance of 60 centimeter from focal point. पहले आपको समझना है फोकल पॉइंट क्या है। बेटा आप लोगों ने 10th क्लास में शायद सुना होगा, फोकल पॉइंट होता है फोकस। इसको मैंने ऑब्जेक्ट को पोल से दूर नहीं रखा, इसको मैंने मिरर के फोकस से कितना दूर रखा बेटा, मिरर के फोकस से मैंने इसको कितना दूर रखा, 60 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इट इज इमेज इज फॉर्मड एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज है वो उसी जगह बनी जहां ऑब्जेक्ट है। जो इमेज है, इमेज उसी जगह बनी जहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। मुझे क्या निकालना है, मुझे मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे पहले पता होना चाहिए, यह है बेटा मेरा कनकेव मिरर। सपोज बेटा ये इसका फोकस है, जिसको हम फोकल पॉइंट कहते हैं, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है मेरा बेटा, दिस इज फोकल लेंथ। इस फोकल पॉइंट से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे मैंने रखा है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। यह है पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको मैं रखूंगा नाम O। इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो भी वहीं पर बनी जहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा। इस ऑब्जेक्ट की इमेज उसी जगह बनी, उसी पॉइंट पे बनी जिस पॉइंट पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, मुझे निकालना है इस मिरर का फोकल लेंथ। यहां पर मुझे कंसेप्ट यूज करना है। मुझे पता है कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज उसी वक्त एक ही पॉइंट पे होते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। When the object is placed at the center of curvature of a convex mirror, the image is formed also at the center of curvature. इसका मतलब है जो ये पॉइंट है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब है जो ये डिस्टेंस यहां P से I तक है, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम यहां ले देखेंगे, जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है f प्लस 60। क्योंकि यहां से यहां तक f है, यहां से यहां तक 60 है, तो हम सीधे लिखेंगे r इज इक्वल टू f प्लस 60। r इज इक्वल टू f प्लस 60। r इज इक्वल टू f प्लस 60। अब जो मेरा r है बेटा वो 2f है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ। चूंकि मैंने कहा ये f जो है ये PC का मिड पॉइंट होता है, तो हमारा जो r है, हमारा r 2f है बेटा। तो यहां पर बेटा मुझे 2f इज इक्वल टू f प्लस 60। तो ये हो गया 2f माइनस f इज इक्वल टू 60।
तो ये हो गया f इज इक्वल टू 60। तो ये मिरर जो मेरा है इसका फोकल लेंथ जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। सिम कैसे किया बेटा, मैंने ये देखा कि इमेज और ऑब्जेक्ट उस वक्त बनते हैं एक ही जगह जब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये r है, r हो गया f प्लस 60, तो r जो होता है वो 2f के बराबर है। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हमने ये निकाला, फोकल लेंथ होगा मिरर का 60 सेंटीमीटर। One more beautiful question so many times asked in the NEET examination. Question देखो, फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज f। हमारे पास एक कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ f है, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस इज x। यानी अभी जो क्वेश्चन मैंने किया यहां पर भी जो x है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द ऑब्जेक्ट। द रेशियो ऑफ size of image to the size of object is f plus x by f by x under root of f by x। और यहां पर जो है ये कैपिटल F नहीं है, दिस इज स्मॉल f, ये गलती है इसको, दिस इज स्मॉल f स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। काइंडली नोट दिस पार्ट, दिस ऑप्शन नंबर डी, दिस इज स्मॉल f स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। फिर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, हमारे पास कनकेव मिरर दिया गया है, इसका फोकल लेंथ f है और ऑब्जेक्ट और फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो x है। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आप लोगों को पता होगा साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज मैग्निफिकेशन। हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है, हमें सिंपली f और u दिया गया है, हमें सिंपल फार्मूला लगानी है, m इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय f माइनस u। वही फार्मूला लगा के हम इसको 20-30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटा ये कनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ f है, f जो है वो प्रिंसिपल फोकस है, o जो है ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो x है। अगर हम u निकालेंगे तो हमारा u जो है वो बनेगा f प्लस x, f प्लस x। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम ऐसे लिखेंगे u इज इक्वल टू माइनस टाइम्स f plus x as per sign convention, object distance is always negative। अब जो आपका f है, यहां पर f मेरा जो है वो नेगेटिव है, चूंकि ये जो मिरर है दिस इज द कनकेव मिरर। तो आपको बेटा m निकालना है। अब आपको लंबी चौड़ी फार्मूला नहीं निकालना है, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, उस पर v निकालना है। चूंकि आपको ULF दिया गया है, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। हमें पता है इन टर्म्स ऑफ f एंड u, m जो होता है, m होता है बराबर f डिवाइडेड बाय f माइनस u। वैल्यू पुट करो, m हो गया हमारा बराबर माइनस टाइम्स f, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है, डिवाइडेड बाय माइनस f, अपना माइनस f है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का क्या यहां पर साइन है माइनस, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बन गया प्लस f प्लस x। तो आपका बेटा m जो है, m निकला हमें माइनस f डिवाइडेड बाय माइनस f प्लस x। f एंड f कैंसिल हो गया, तो यहां पर m जो है वो निकला बेटा बराबर माइनस f बाय x। अगेन यहां पर जो माइनस साइन है वो जो है दैट डिनोट्स द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। तो जो आपका साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी m है, वो एक्चुअली आपको f बाय x के बराबर है। तो आपका ऑप्शन जिसमें f बाय x आ गया, जो वाला ऑप्शन f बाय x है वही वाला ऑप्शन ठीक होगा। दिस कंप्लीट्स न्यूमेरिकल नंबर 5। कुछ और न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि टाइम कम है यहां पर, हमारे पास बाहर कुछ और लोग हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स है, वो हम अगले वाले लेक्चर में इंशाअल्लाह कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।